Good morning, students. So today we are going to start our chapter number 15, that is of improvement in the food resources. Okay, so before starting this chapter, first of all we will introduce this chapter. As all of you know, mainly that food we eat is that substance that provide a living organism energy for the various body function and for the growth, repair and development of the body. Okay, so it provide body with the protein, carbohydrate, fat, vitamins, minerals. मीन्स जो भी हम फूड लेते हैं तो वो फूड हमारे किस काम आता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में और हमारी बॉडी की रिपेयर और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है. ठीक है, और वो फूड हमें किस टाइप के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, लाइक दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स. ओके, सो दिस टाइप के जो और न्यूट्रिएंट है दैट ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द फूड. ओके, सो द टू फील्ड आर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे दो फील्ड के अंदर आती है. एक होता है हमारा एग्रीकल्चर और एक होता है हमारी एनिमल हस्बेंड्री. सो एग्रीकल्चर क्या होता है? It is a science and practice of the cultivation of the soil, producing crops and raising the livestock, harvesting that product and their marketing. Okay, so the caring, breeding, exploitation and domesticated animal for the milk, meat, fiber, eggs, that is called as the farm animal husbandry. Clear the term difference between the agriculture and the animal husbandry. Okay, so now we will discuss the our first topic, that is the improvement in the crop yield. Means how we can improve the our crop yield and what type of the crops nutrient can be improved. Okay, so agriculture is that science of the farming which involve the rearing of the livestock, cultivating land, raising crops, reaping and marketing the produce. Okay, so that branch of agriculture that is connected with the rearing of the crop plant is called as the agronomy. Okay, branch of agriculture which deal with the management of the crop plant, that is called agronomy. Okay, and so agronomy that will be consist of mainly crops. So what type of the crops are to be grown in the field? So first we have cereal crops. So in cereal crops we have like wheat, rice, maize, barley, oat. So these all are the cereal crops. Next we have pulses. So pulses like the gram, black chane, pea matar. Okay, सिंपल ग्राम, ग्रीन ग्राम, मूंग दाल. मतलब वो सारी इस किसके सारी जो दाल्स हैं, आपकी दालें जो हम खाते हैं वो सभी पल्सेस के अंदर आती हैं. ठीक है. थर्ड होते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स. तो जो क्रॉप्स हमें ऑयल देती हैं, जैसे हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है. ठीक है, सनफ्लावर ऑयल है. नेक्स्ट होते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स, जो हमें सारी वेजिटेबल प्रोवाइड करती हैं और फ्रूट्स प्रोवाइड करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट होते हैं स्पाइसेस, लाइक काली मिर्च होगी, अदरक हो गया, हल्दी होगी, मसाले हो गए. सो ये भी सभी आ जाएंगे स्पाइसेस के अंदर. और इसके बिना कुछ अदर क्रॉप्स भी होती हैं, जैसे हमारे पास शुगर केन, तंबाकू. ओके, सो दीज आर ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स. Okay, so next we have depending upon their season, crops are of two types, rabi crop and one of the kharif crop. So the what do you mean by the rabi crop? So that crops which are grown from the नवंबर टू अप्रैल सीज़न. मतलब जो क्रॉप्स नवंबर से अप्रैल के इन बिटवीन ग्रो करवाई जाती हैं उनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं. इसमें आ जाएगी जैसे हमारे पास है कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, टर्निप और दी वीट इज़ अ मेन रबी क्रॉप. ठीक है. और नेक्स्ट होती हैं खारिफ क्रॉप होती हैं जो रेनी सीज़न में होती है, जो जून से अक्टूबर के इन बिटवीन होती है. सो जून से अक्टूबर के इन बिटवीन कौन सी क्रॉप होती है? जैसे हमारे पास राइस हो गया. ठीक है, पैडी क्रॉप्स, मेज, मकई, मिलेट्स, ग्राउंडनट. सो ये सारी क्रॉप्स हैं, उनको खारिफ क्रॉप बोलते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन खारिफ और रबी क्रॉप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so what are the kharif crops? See this, so that crops which are grow in hot and wet condition, and rabi crop grow in the cold condition. Okay, so their sowing period of kharif crop is beginning of rainy season in June July, and rabi crop their season is October to November. Okay, so the harvesting season of kharif crop is September October, and harvesting season of rabi crop is March April.
ओके, एग्जांपल्स है खारिफ क्रॉप की राइस मेज और रबी क्रॉप्स में आ जाएगी वीट बार्ले. Okay, so this is all about the difference between the rabi crop and the kharif crops. Clear? So now we will discuss how we can improve the crop variety. So how we can manage all the crop मैनेजमेंट, मतलब पूरी क्रॉप को सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के सारे प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं. तो वो मैनेजमेंट के अंदर 3 टाइप के स्टेप होते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. ओके, सो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, देखो. So the main objective for the crop variety improvement is first to obtain the higher yield of the crop, and next we have to improve the quality of the seed. थर्ड है टू मेक द सीड बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब उसके ऊपर किसी चीज़ का अफेक्ट ना पड़े. नेक्स्ट है चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, कि उसका जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन है वो शॉर्टर होना चाहिए ताकि जो क्रॉप है वो जल्दी ग्रो कर पाए. नेक्स्ट है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, कि जिस टाइप की हमें ट्रेड चाहिए है उस क्रॉप्स की, उस टाइप की हम उसको ग्रो करवा सकते हैं. और लास्ट है उसका वाइडर अडेप्टेबिलिटी. इसका मीनिंग क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स दे आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टू डे लाइट. सो सम प्लांट फ्लावर इन द सीजन बट वाइल अदर फ्लावर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द टेम्परेचर कंडीशन आर फेवरेबल. मतलब कुछ क्रॉप्स तो, जहाँ कुछ फ्लावर्स जो हैं क्रॉप्स के वो पूरा सीज़न रहते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स का कुछ पर्टिकुलर सीज़न होता है, वो उसी सीज़न के अराउंड ही ग्रो करते हैं. तो उन्होंने क्या किया, जो पूरा साल ग्रो करते हैं उन्होंने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है. तो इसको हम वाइडर अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जैसे सो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे पास. हमने फर्स्ट कर लिया हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बायोटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन मेच्योरिटी, वाइडर अडेप्टेबिलिटी एंड डिज़ायर एग्रोइकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स. Okay, so our next step to increase the crop yield, that is the crop production management. So what do you mean by the crop production management? So here we have two type of the management. One is a nutrient management and other one is a and second one is a irrigation. Okay, देखो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए जैसे सबसे पहले मैनेजमेंट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर होती है उसकी इरिगेशन, फिर करते हैं उसकी हार्वेस्टिंग. ठीक है, तो ये तीनों स्टेप्स के एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है. तो सबसे पहले आ गया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि वो सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट चेक करते हैं जो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एसेंशियल होती हैं. ठीक है, अब न्यूट्रिएंट होते क्या हैं, देखो. So that substance which increase the fertility of the soil, that are to be called as the nutrient. Okay, so nutrient mainly are of the two types. One is a macronutrient, other is a micronutrient. So macro means large quantity, means that nutrient which are required in a large quantity, that are to be called as the macronutrient, and micro means which are required in the small quantity. Okay, so macronutrient they, for example, we have nitrogen, phosphorus, potassium, and micro which are required in less quantity like the iron, magnesium and the boron. Okay, so next difference is that macro they take part in building plant body, and micro they have no such function. Next macro they have no significant role in the enzyme activity, but micro they have helpful in the enzyme activity. मीन्स उसकी ग्रोथ वगैरह में हेल्प करते हैं, लेकिन वो जो लेस मतलब फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे मिनरल रिप्लेनिशमेंट. सो मिनरल रिप्लेनिशमेंट में हमारे पास टू टाइप्स के सबस्टेंस और यूज़ किए जाते हैं. दीज आर दी मैन्योर एंड दी फर्टिलाइजर्स. ओके, सो यहाँ पे वो मेन क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र. सॉरी, सो मैं आपको जो डिफरेंस वाला मेन क्वेश्चन है वो बता देती हूँ, उसके जो मेन पॉइंट है. सो मैन्योर दैट इज़ obtained फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर क्या है, जो हम लिविंग मैटर से मिलके बनाते हैं. मीन्स जो प्लांट और एनिमल का डेड डिकेइंग मैटर होता है, ठीक है, उससे मिलके जो बनती है वो मैन्योर है, और जो हम केमिकल से बनाती है वो फर्टिलाइज़र है. क्लियर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट कि जब हम मैन्योर बनाते हैं, सो इट कैन बी
इट इज़ ए सेमी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ये आफ्टर डिकम्पोजिशन के बाद बनती है। फर्टिलाइज़र केमिकल से बनती है तो इसमें कोई डिकम्पोजिशन का रोल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैन्योर है वो हम घरों में बना सकते हैं, दैट कैन बी मेड एट होम। और जो फर्टिलाइज़र है दैट ऑलवेज मेड इन द फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में बनती है हमेशा फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैन्योर को है वो किसी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती है, ठीक है। मतलब हम कहीं पे भी मैन्योर को किसी भी क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होती है वो स्पेसिफिक होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए किसी स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। मतलब एक टाइप की फर्टिलाइज़र हम सारी क्रॉप्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो मैन्योर का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइज़र को जो स्टोर करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना वो थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो एक्सेस मैन्योर इज़ नॉट मच हार्मफुल। अगर हम इसकी ज़्यादा अमाउंट बना लेंगे इसको तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन जो फर्टिलाइज़र का है अगर एक्सेस अमाउंट उसका क्रॉप के अंदर चला गया तो वो क्रॉप के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो मैन्योर होती है उसको क्रॉप में डालने के लिए लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है। सो मैन्योर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बट फर्टिलाइज़र रिक्वायर इन अ स्मॉल क्वांटिटी, क्लियर। नेक्स्ट है nutrient availability. So nutrient availability is moderate, nutrient are released slowly. So manure के अंदर जो nutrient present है वो slowly release होते हैं, लेकिन fertilizer के जो nutrient होते हैं वो fastly act करके जल्दी release हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर द डिफरेंस इन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कि जो मैन्योर है वो लिविंग मैटर से बनती है और जो फर्टिलाइज़र है वो नॉन लिविंग मैटर से बनती है, क्लियर। सो मैन्योर के अंदर हमने 2 पॉइंट और करने हैं, दीज आर दी कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एंड दी ग्रीन मैन्योर, ठीक है। अब दिनों में डिफरेंस क्या होता है देखो। जो कंपोस्ट होती है द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटीरियल लाइक दी काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, straw eradicated, so it is decomposed in pits, that is known as a composting. And the compost is rich in the organic matter and nutrient, so it also prepared by using the earthworm to hasten the process of decomposition. So this process is to be called as a vermicompost. वर्मी में क्या करते हैं कि काउडंग और सारा वेस्ट मटेरियल एक पिट में डाल देते हैं और पिट में डाल के उसके अंदर अर्थवर्म छोड़ देते हैं, तो वो अर्थवर्म क्या करते हैं सारे वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं और आफ्टर डिकम्पोजिशन जो हमें मटेरियल बचेगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। सेकंड होती है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होती है कि सम प्लांट लाइक द सन हम्ब और दी अदर प्लांट दे आर ग्रोन एंड देन मल्च्ड बाय द प्लॉइंग दैम इनटू द सॉइल, सो दिस ग्रांड प्लांट दैज टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। मतलब कुछ प्लांट उसके साथ ऐसे ग्रो हो जाते हैं जिसको हम एज ए ग्रीन मैन्योर भी उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं ग्रीन मैन्योर नाइट्रोजन को फिक्स करके उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। सो ये दोनों मैन्योर से ही मिलके बनते हैं, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, ठीक है। फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब हमारे सॉइल अच्छे से मतलब प्रिपेयर हो गया उसके ऊपर प्लांट्स वगैरह ग्रो करने के लिए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं उसकी इरिगेशन करते हैं, ठीक है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट, ठीक है। हम क्रॉप्स को पानी देते हैं तो वो क्या होती है हमारी इरिगेशन होती है। तो इरिगेशन हम जो डिफरेंट मेथड से करते हैं, सो जो ओल्ड टाइम में क्या करते थे वेल्स वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है। से वहीं से वो जो क्या करते थे इरिगेशन मतलब पानी वगैरह जो क्रॉप्स को उनके थ्रू देते थे, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास कैनाल्स। कैनाल्स क्या होती हैं, दीज आर दे रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर और फ्रॉम रिवर। सो कैनाल में पानी कहाँ से आता है, रिवर से आता है और वो कैनाल्स आगे डिवाइड होती है ब्रांचेस के अंदर। अब वो ब्रांचेस के थ्रू जो पानी है वो हमारे फील्ड तक पहुँचता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिवर लिफ्ट सिस्टम। सो रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या करते हैं, वेयर द कैनाल, जहाँ पे मतलब कैनाल के थ्रू पानी सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिलता तो वहाँ पे डायरेक्ट रिवर में से जो पानी आके फील्ड को दिया जाता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारा टैंक्स। तो टैंक्स क्या होते हैं, दीज आर दी स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर। सो ये रिजर्वायर होते हैं जिसके अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है और वो स्टोर वाटर फिर बाद में फील्ड में सेंड किया भेजा जाता है वहाँ पे उसको वाटरिंग द क्रॉप्स के लिए, ठीक है। अब जो हो गया इरिगेशन भी हो गई। इरिगेशन के बाद आता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कि हमने क्रॉप को किस टाइप से ग्रो करवाना है,
ठीक है। सो क्रॉपिंग पैटर्न में हमारे 2-3 मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग है। सो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स हम एक ही टाइम के ऊपर ग्रो करवाते हैं, उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे वो कहते हैं वीट प्लस ग्राम, कनक और ग्राम को दोनों एक साथ को ग्रो करवाया जाता है, तो ये क्या होगी हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग के बाद आती है हमारे पास इंटर क्रॉपिंग। सो इंटर क्रॉपिंग का मीनिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन द डिफिनाइट पैटर्न। ठीक है, जैसे देखो ये डायग्राम में इंटर क्रॉपिंग शो की हुई है, तो वहाँ पे एक पैटर्न के थ्रू डिफरेंट और क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है। जैसे 2 लाइन्स में एक क्रॉप होगी, फिर नेक्स्ट 2 लाइन्स में अदर क्रॉप्स, फिर नेक्स्ट 2 लाइन में 3 क्रॉप्स। मतलब जैसे 3 क्रॉप्स है तो तीनों को एक साथ एक ही सॉइल के अंदर ग्रो करवाया जाता है, लेकिन उसको लाइंस की फॉर्म में, एक पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्म में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। ओके। सो नेक्स्ट मेथड आ गया हमारे पास। इसमें एग्जांपल है, जैसे हमारे पास बाजरा प्लस फिंगर मिलेट और दी काउपिया दैट इज़ लोबिया, इन दोनों को एक साथ, या फिर सोयाबीन और मेज को एक साथ इस टाइप क्रॉपिंग पैटर्न से इंटरक्रॉपिंग में से ग्रो करवाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द पीस ऑफ ए लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे एक क्रॉप ग्रो हुई, उसको हार्वेस्ट कर लिया, फिर उसी जगह के ऊपर हमने दूसरी क्रॉप को ग्रो करवा दिया, इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन प्रोसेस। Okay, so depending upon the duration, crop rotation is done for a different crop combination. So the availability of moisture and irrigation facilities decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest. If crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with a good harvest. ओके। सो ये हो गया हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट हमने करना है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि अब हमारी क्रॉप ग्रो होगी, अब उसको हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, मतलब उसके ऊपर किसी चीज़ का अफेक्ट ना पड़े, कोई उसके ऊपर इंसेक्ट वगैरह ना आ जाए, तो उस चीज़ से हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। सो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में देखो सबसे पहले आते हैं हमारे पास वीड्स। सो वीड्स क्या होते हैं? सॉरी, फर्स्ट पॉइंट है, हाँ यस, वीड्स। सो वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट दैट इज ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप। मतलब हमारी मेन क्रॉप के साथ अगर कोई मतलब अनवांटेड प्लांट अपने आप ही ग्रो कर जाएँ, तो उसको हम वीड्स बोलते हैं। ठीक है। तो वो वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो वीड्स क्या करते हैं कि जो हमने मेन्योर फर्टिलाइज़र क्रॉप के लिए डाली होती है, तो वो खुद उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो मेन क्रॉप तक वो न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते, इसलिए इन वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है। सो इसमें कौन कौन से वीड हो सकते हैं? जैसे देखो गाजर खास है, मोथा है, तो ये इस टाइप के वीड्स होते हैं। ओके। ओके, सो नेक्स्ट होते हैं हमारे इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट भी क्या करते हैं? मेन क्रॉप को अटैक करके उसको ख़राब कर देते हैं। सो दे कैन अटैक द प्लांट इन 3 वेज। फर्स्ट है दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ, दे सक द सेल सैप फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दे बोर इन टू द स्टेम एंड फ्रूट. Okay, so they also affect the health of the crop and reduce the yield. So diseases in the plants are caused by the pathogens such as the bacteria, fungi and viruses. So the weed, insect and diseases can be controlled by various methods. So one of the most commonly used method is the use of the pesticides, which include the herbicide, insecticide and the fungicide. So the chemicals are sprayed on the crop plant or used for treating the seeds and soils. However, excess use of these chemicals create problem since they can be poisonous to many plant and animals. So weed control method also include the mechanical removal, preventive methods such as the proper seed bed preparation, timely sowing of crops, and intercropping and crop rotation also help in weed control. Okay, so this is all about our crop protection management. Okay, so next topic we will discuss in our next video.